Everyone. I am Arvaz, and on behalf of our audience, I would like to welcome, take the opportunity to welcome our chief jester, that is you, sir, Mr. R.K. Mahapotra. You were born in 1963. You are a very successful and renowned Indian author of non-fiction self-help books worldwide, having vast 28 years of experience in finance and account in India and abroad, working as general manager finance in Aircon. As financial expert with profound knowledge of various investments avenue, you are known for your work on cash and wealth management, portfolio analysis, financial planning, and retirement planning for individuals. I welcome you, sir, to this event. Thank you. Good evening to all. Thank you. So you have published four books: Retirement Planning, A Simple Guide for Individuals; Investment, Risk and Growth, A Guide for Investors about Investment Vehicles; सही निवेश से अमीर बने Hindi edition, and Mutual Funds, A Powerful Investment Avenue for Individuals. So, sir, my question to you is, what inspired you to take up writing? आपने writing की मतलब कहाँ से motivation ली और क्यों start किया? As you told me, I am working in IRCON as a general manager of finance. As a finance man and professional qualified, uh, my staff and colleagues used to come asking the taxation person, sir, tax कैसे भरना है, क्या करना है. हाँ, Nowadays, it is vast multiple avenue available for saving. At that time, only LIC policy is the best policy. We used to do the LIC policy for taxation purposes. yes, Uh, just I'm sharing a few things. I joined in Srinagar project in 2008. At that time, Srinagar is very hostile due to some terrorist attack and like that. But we are doing the prestigious project, US Rail Link project, that is yes. linked to Jammu to Baramulla. Okay. Okay. So in that project, there is no option except LIC and few bonds. That bonds are generally coming in the January, February, and March. That is not हाँ, certain. Then I thought I will advise the staff as well as those who are asking to me where they can invest and earn a handsome amount. As a result, both the taxation part as well as their future growth will be yes. increased. This is the फर्स्ट इंस्पिरेशंस दैट मेरा स्टाफ को जा रहा है जो उन्होंने मेरे को हाँ. अत्र बना दिया. वाह सर, यू आर ट्रू मोटिवेशन. मतलब आपने स्टाफ के लिए आपने पूरी किताब लिख दी. Yes, and the first book what you told me I am showing to you. This is the book यस सर. Investment Addiction Group. इन्वेस्टमेंट सर. यस. Actually, this is a book consists of what are the investment available for an individual for investment, because generally public doesn't know which investment is giving more and which is less. People are यस. though you are does not having ABCD of the financial planning, they are motivating you. Say I am coming to your house, your office. अरे आप एल आई सी एजेंट बोल दिया कि ये ले लो, ये आपका 20 साल में ये हो जाएगा, आपका लड़की का ये हो जाएगा, वो हो हाँ, जाएगा. हाँ. Actually, यस, यस, यस. this is a purely as a mis-selling of product, and हाँ. those who are investing that product, they will lose their money. And my हाँ. first advice is, in the first chapter, you will find where to invest, when to invest, and which product you invest for how many years. यस. Not sell, I am defining you. There is the avenue. On today, you can invest in equity or mutual fund, debt म्यूचुअल fund, फंड. gold, यस. land, as well as लैंड. other investment. Nowadays is यस. Bitcoin. I am not suggesting anywhere else. Okay. Okay. यस. इट्स All the बिटकॉइन इज मोर लाइक गैम्बलिंग. gambling or share market also gambling. That is not it's a legalized gambling. That is यस. illegally gambling. Out यस. of this avenue, you don't know how much you invest in the gold, how much you invest in the debt, how much you invest in the
इक्विटी। और बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारा भारत में, लोग इक्विटी का नाम में डरते हैं, भाई ये शेयर मार्केट जाएगा मेरा पैसा सारी डूब जाएगा। यस यस। मैं बहुत लोगों का ये बिल्कुल। जो फियर था कि शेयर मार्केट आने के बाद पैसा डूब जाएगा, मैं इनको यस। एक ही ग्राफ दिखाया, निफ्टी का दिखाया 10 साल का। हाँ मैंने देखो हाँ। 10 साल का निफ्टी का ग्राफ देखिए, एवरेज आपको 8.5 से कि 9% रिटर्न दे रहा है एवरी ईयर। रिटर्न दे रहा If you है, will बिल्कुल stay दे रहा invested, if you stay invested throughout the year up to 10 years, that means in long run, in है। यस equity is giving a handsome return in comparison to other investment product. Nowadays, our FD, how much we are earning from FD? Generally 5.5, 7%। 5, फाइव maximum फाइव। 6. यस Eh? यस Again, यस। on that earning, you are also paying tax as per your slab. Suppose you are 30% slab, you are paying the 30% on an accrual basis. Then I suggested my staff, don't do FD. Please select a यस fund which suit your risk appetite. यस। ऑफ Now I am कोर्स। telling about the risk. What is the risk? Risk is यस सर। every instrument is risk. आप सोचते हो मैं बैंक में एफडी कर दिया, रिस्क नहीं है, ये सब भ्रम है वो आपका, भी रिस्क है। भ्रम है। हाँ। लास्ट ड्रम है। मेरे ख्याल से 2 साल से आपका यस बैंक का भी हुआ और एक प्राइम बैंक का हुआ, जो लोग इतना परेशान उठाया है। ओनली यस फाइव यस। लाख ओनली 5 लाख इज 5 लाख। टैप। हाँ, उतना ही above the रेंडर्ड हो 5 पाया है। above the 5 lakhs, whatever you invested, इज एट everywhere is रिस्क। risk. That 5 was also risky. Anyway, ट्रू सर। uh, whatever you invest in the FD, whatever interest you earn on accrual basis every year, also you are also paying to tax, income tax. यस। है। तो नॉटसेल एफडी इज नॉट ए वाइज डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट इज, हम लोग सबका घर में गोल्ड है, लेकिन हम गोल्ड निवेश नहीं गोल्ड है। करते हैं, हम इसको ऑर्नामेंट का तौर पे यूज करते हैं। आज के यूज। डेट में यस। हम गोल्ड को एक अगर निवेश मानते हैं, तो उसमें कई तरीके के, फिजिकल गोल्ड है, आप गोल्ड हाँ, परचेज करके घर में रख लो, उसमें घर चोरी में होने रख का लीजिए। खतरा है, और प्योरिटी का खतरा है। गोल्ड सच है कि प्योरिटी गलत है, रखता कहाँ है। आया क्या हुआ है, जो मैं बेचने में जी जाऊंगा मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब तो टुडे ऑनलाइन वी गोल्ड भी हैव, अवेलेबल है। हाँ, जी ऑनलाइन गोल्ड गोल्ड बॉन्ड आप ले सकते हैं, जो 2.5% जी आपको और आनंद मिलता है, और आफ्टर 1 ईयर आपको मिल जाता है। ठीक है, जी। ये गोल्ड आप परचेस कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ भी परचेस कर सकते हैं। ये सब जरिया जी। पहले नहीं था, बात था, हम लोग को पता नहीं था। तो दैट आई हैव कवर इन माय फर्स्ट बुक, gold, bond. PPF ओके। is a debt fund. It is an amazing debt fund. It is exempt. On debt, only the PPF is एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, जहाँ पे आप जब डिपॉजिट करते हैं 150 का अंदर में आप एटीसी में क्लेम कर देते हैं। जो इंटरेस्ट आता है आप कोई टैक्स नहीं देते हो, जब पैसा आपको आ जाता है आप भी कोई टैक्स नहीं देते हो। दिस इज कम्स अंडर जी। एग्जाम। फॉर एग्जैक्ट। एग्जाम्पल, सपोज बिगिनिंग ऑफ द ईयर you are investing 1,50,000, आफ्टर ओके। द 15 years, अगर हम एवरेज इंटरेस्ट 7% मानते हैं, यू सात हैव परसेंट मांगते हैं। मानते हैं, तो यू हैव टू अर्न 42 lakhs। ओके, ओनली। यस सर। ओनली। यस अच्छा, यस। सपोज मैं डेप्ट का फंड का ये हूँ, ये गवर्नमेंट बैक्ड फंड है, मतलब कोई परेशान नहीं है, यू कैन इन्वेस्ट इन द पीपीएफ। लेकिन यू आर ए यस। यंग, यू डोंट वांट टू, सर मैं क्यों जाऊँ डेप्ट में, मेरे को आप ऐसा फंड दीजिए कि मैं रात रात करोड़पति बनना चाहता हूँ। बहुत सारी एग्रेसिव इन्वेस्टर ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड, जी। यू माइट हैव नोन दैट आवर डिमार्ट account is flourish in the India. CDCL and यस। NSDL say a जी। lot of demand account increasing because people are यस। sitting in the house and their money they are investing a proper investment and इन्वेस्टिंग। यस। हाँ, तो जो ये यंगस्टर है, दे वांट मोर मनी इन द शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। उसके लिए मैं इनको ये एडवाइस करूंगा, यू चूज द म्यूचुअल फंड रूट। यस। म्यूचुअल फंड एक रूट है जो रूट का थ्रू आप अपना पैसा को डबल ट्रेबल कर सकते हो। अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करते हो, 3.5 साल में आपका अगर इन्वेस्टमेंट 17-18% आ जाता है पर आनम, आपका डबल हो जाती है। अगर आप डबल हो मीडियम में जाता करते हो, 16 16 का आसपास में हमारा रिटर्न आता है, 4-5 साल में डबल हो जाती है।
और आप कंजर्वेटिव जी। हो, आप लार्ज कैप में करते हो, 11 और 12% लास्ट का में। रिटर्न आप ये करते जी। हो, तो आपका भी जी। 7-8 साल में डेवलप हो जाती है। ये जो कवर अप हो तीनों जाता है। कवर हो जाती है। ये जो लार्ज कैप, मीडियम कैप और जो स्मॉल कैप मैंने बताया है, ये यंगस्टर जी। को भी ये पसंद नहीं है। नो, विल गो हम्म। डायरेक्ट इक्विटी, कूद जाते हैं सीधा मार्केट में, कूद जाते हैं। इक्विटी। कोई रिसर्च करके जाता है, कोई रिसर्च नहीं करता है। लेकिन ये जो आपने देखा होगा 19 का मतलब 20 का बाद, आफ्टर लॉकडाउन, इन द लॉकडाउन मार्केट फॉल सडनली लाइक 2008, and there is a V-shaped recovery in the share market. Although economy यस। is not increasing in short span of time so much, but share market is a V-shaped recovery. People those are investing in 10,000, they have earned 50 times, 60 times ओ माय गॉड। during this period. मतलब यू कैन इमेजिन, यस। अगर आप राइट टाइम में राइट फंड में आप, सॉरी राइट शेयर में आप निवेश करते हैं, हाँ। तो आपका एट हो राइट टाइम। जाता है। लेकिन ये रिस्क है, यस। यू हैव टू बियर द रिस्क। मतलब फॉल भी होता है, आपको इतना ही लॉस होगा। तो यस। इसीलिए हम फर्स्ट टाइम जो निवेश करते हैं, हम सलाह देते हैं यू गो टू म्यूचुअल फंड रूट। यस। थर्ड रह गया आपका बॉन्ड। बॉन्ड इज ए सच ए बॉन्ड। थिंग्स, बॉन्ड इज सच ए थिंग्स। व्हाट इज द बॉन्ड? बॉन्ड मीन्स आप कुछ पैसा लगाते हो, एक कूपन रेट का इंटरेस्ट रेट मिलता है। आइधर आप ईयरली ले लो या हाफ ईयरली ले लो, दैट डिपेंड अपॉन द इशू ऑफ द बॉन्ड फीचर्स। अदरवाइज यस। 5 साल का बाद कि 10 साल का बाद जो भी होता है, आपका एक्यूमुलेट होकर इंटरेस्ट कम्युलेटिव इफेक्ट में आपको मिल जाता है। ये सब है इन्वेस्टमेंट का माध्यम है, एवेन्यू है, जो यस। एक आम लोग को जरूरी है। इसीलिए जरूर है। ये मेरा फास्ट बुक जो है उनके लिए रामबाण जी है। सर। तो इसके पढ़े, सीखे, कोई प्रॉब्लम है मेरे से बिल्कुल बात सर। करें। आई विल गिविंग द बिल्कुल। फ्री एंड फ्री क्या एडवाइस। बोलते हैं, फ्री एंड फ्रैंक एडवाइस दे, नॉट बायस्ड नहीं है। मेरे को ना कोई म्यूचुअल फंड कोई पैसा दे रहा है, ना कोई दे रहा है तो मैं दे रहा हूँ सर ये जिसको तो कोई आपका प्रॉब्लम है बड़प्पन है सर। सर। बस। तो ये मेरा फर्स्ट बुक था, 2013 में मैंने इसको पब्लिश किया था। जी। तो सेकंड बुक मैंने जो पब्लिश किया है, ये 2016 में था। इट इज प्योरली रिटायरमेंट रिटायरमेंट प्लान। प्लानिंग दैट यू हैव ऑलरेडी टोल्ड। यहाँ यस पे यस मैंने यस। यहाँ पे मैंने दो भाग में इसको भाग किया है रीडर के लिए। जी। जी। एक है प्री रिटायरमेंट, एक है पोस्ट रिटायरमेंट। पोस्ट मतलब रिटायरमेंट। हाँ, प्री रिटायरमेंट और पोस्ट के बीच में के हम उसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन स्टेज। सपोज जी। यू आर इन 30, यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग at the age of 55, whatever you have forecast estimated today, at the age of 55 you have earned that amount, then I suggested you will quit the money from the risk asset, hold in a risk-free asset, and जी। after 60 you will earn every month, either through annuity or through bond or through पेंशन। पेंशन, whatever में द जरिया, वो सब फंड में यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ आप कर पाओगे। जी। On that I am just giving a idea before and after. Before you can choose what I have told you: mutual fund, यस। PPF, NCD, non-convertible debenture, that is a ओके। debt fund. Then you can डेप्थ choose फंड। gold, gold bond. You can, गोल्ड otherwise you बॉन्ड। can purchase a land in your if you have some amount, you just purchase and छोड़ दीजिए, 20 साल का बाद स्विट्जरलैंड। छोड़ दीजिए, आप मल्टीपल इफेक्ट वो। हो जाएगा। जी। आप यस। पता नहीं चलेगा आपको कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि यस। आज आज का डेट में, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, नोबडी नोज व्हाट विल हैपन टुडे। आज हम बात कर रहे यस। हैं, कल शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा। कल जैसे रशिया और यूक्रेन का वार हो गया है, अभी यस। कितना यस। प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं, कोविड आ कितना गया है, प्रॉब्लम है। कितना जी। प्रॉब्लम हम झेल रहे जी। हैं। तो इसीलिए आपका एसेट, हर एक एसेट, सॉरी आपका निवेश हर एक एसेट में होना चाहिए। और गोल्ड में है, डेप्थ में है, इक्विटी में है, बा लैंड में है, वो अगर है तो डिफरेंट लाइफ साइकिल में आपको डिफरेंट रिटर्न आ जाएगा। एवरेज में आपको 7-8% रिटर्न ओवर द लॉन्ग रन मिल जाएगा। जी। तो ये हमने जी। जो
रिटायरमेंट प्लानिंग का बिफोर में इसको समझाया। और खूबी है किताब का ये है, इन द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल फाइंड द टैक्सेशन लॉज। अगर आपका अच्छा होता है तो आपको क्या टैक्स देना पड़ेगा। जी उसका बाद आफ्टर 60 आप कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है। जैसे आजकल आ गया है, आपने सुना होगा लास्ट ईयर बजट में गवर्नमेंट ने आरबीआई को रिटेलर के लिए बॉन्ड में पार्टिसिपेशन खोल दिया है। जी नाउ यू कैन जी जी log in the RBI portal and you directly invest in the bonds. Earlier it was इन्वेस्टिंग not बॉन्ड for जी the, yeah, RBI. Apart from that, RBI also issue a flexi bonds. तो आप भी यस कोई चार तीन चार बैंक है और आपका कोई होगा आपका, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, एसबीआई हो एचडीएफसी हो गया गया, पीएनबी हो गया एक्सिस हो गया, आईसीसीआई, चारों जी बैंक में आप जाके ना आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड भी आप ले सकते हैं। ये 7 साल का अवधि होता है। हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट पे आउट हो जाता है। और इसका इंटरेस्ट का जो प्रणाली गवर्नमेंट ने किया है वो लाइक दैट, एनएससी प्लस 0.35 बेसिस पॉइंट, और हाफ ईयरली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। नाउ दैट इट इज 7.15, where average is giving only 5.5। ये ओके सारे लोगों को पता होना चाहिए ये, कि हाँ ये हमने करेंगे, लेकिन इट इज टैक्सेबल, नो प्रॉब्लम, यू अर्न मनी एंड पे द टैक्स टू गवर्नमेंट। ये टैक्सेबल हमने यस डिफाइन किया गया है जो करते हैं। दिस इज माय सेकेंड बुक अबाउट द ओके सर रिटायरमेंट प्लानिंग। देन रिटायरमेंट आई, प्लानिंग हाँ, आई एम गोइंग टू म्यूचुअल फंड द हॉट पावरफुल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। दिस इज माय म्यूचुअल फंड बुक है। मोस्ट यहाँ पावरफुल बुक मोस्ट पावरफुल बुक ये बहुत भी चलता है ऑन डेट। ऐसा कोई दिन नहीं है कि किताब नहीं बेचता है। Typically, टच वुड I सर am, हाँ, touch wood, thanks to God and thanks to the reader। अच्छा, आपको अमेजन में अच्छा रेटिंग भी मिलेगा। और मेरे को एवरीडे मेरा जो पब्लिशर है मेरे को मेल करता है, सर वन मोर बुक सेल, थैंक यू फॉर दैट, सर वन मोर बुक सेल, वाह थैंक यू फॉर दैट है। तो ये वेरी मेरे जितना ही किताब है, मैं कोशिश किया कि वेरी जी सिंपल लैंग्वेज में एज ए लेमैन, एक जनरल पब्लिक को समझ में आ जाए। क्योंकि जी जी ये तो आजकल एमबीए क्लास में पढ़ा जाता है। आपने कोई जाएंगे, आपका हाँ जी एमबीए जी फाइनेंस जी जी करेंगे, बा कोई जी प्रोफेशनल डिग्री करेंगे, सारी किताब का जो हमने किया है, अल्फा बीटा गामा जितना रेशियो एनालिसिस जी जी वगैरह वगैरह, लेकिन आम पब्लिक को रेशियो से क्या लेना देना है, वो अल्फा गामा में क्या लेना देना है, वो रिस्क से क्या लेना देना है, उनको समझ में आना चाहिए। मैं जो फंड में लगा रहा हूँ, ये फंड मेरा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैंने जी इसमें दो जी केस का एनालिसिस किया है। एक ओके एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का हाँ मेरे ख्याल से मिड कैप का किया है। मिड और कैप ओके हाँ, और आपका फ्यूचर में इंडियन मार्केट का आउटलुक दिया है कि 10 साल की 15 साल का अवधि में अगर हम ग्रो करते हैं, हमारा इकोनॉमी ग्रो जी करते हैं, हम कैसे ग्रो करेंगे, ये हमने एक किताब में दिया है। टचवुड, दिस इज ए गुड बुक। एंड मैं तो आपको बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे को दीजिए, मैं भेज देता हूँ, अदरवाइज आप पढ़िए, नहीं पढ़ सर के मेरे को बिल्कुल मैं कमेंट करिए। पढ़ूंगा नहीं नहीं, बिल्कुल आप पढ़िए, मेरे नो को डाउट कमेंट करिए। और कोई जी जगह आप अटक जाते हैं बिना जी दिक्कत में, आप मेरे को मेल करिए। लेकिन मैं बिजी मैन, आई एम वेरी बिजी मैन, बिकॉज द प्रोजेक्ट द यस प्रोजेक्ट सर प्रोजेक्ट आई एम वर्किंग, दैट इज ए यस 13,000 crore project, ओ not माय less than a गॉड small project. And every month I am पेइंग द, कम से कम मैं 200-300 करोड़ का पेमेंट करता हूँ। ओ और आई एम माय वेरी बिजी मैन, गॉड I am very busy man. Till then, I work for the people. After 10 o'clock, every 1 hour, I am devoting for the my book, and वाह सर सर उनको इतने जो भी बिजी आता होने है के मैं बाद उनको भी आप देता हूँ। कमिटमेंट दे रहे हैं पब्लिक को मुझे कि आप मुझे मैसेज करिए इट्स अ वेरी बिग डील सर बहुत बड़ी नहीं, बात है हम कोशिश करते हैं कि भाई जितना थैंक यू जितना लोगों को दे सके, लोगों जाने, पढ़े। क्योंकि ये इक्विटी एक जो नया फंडा है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज जी विदाउट इक्विटी इन द लॉन्ग रन आपको कोई एसेट अच्छा रिटर्न नहीं देगा। इसमें जी रिस्क है, बट रिस्क को आप सब्सिडाइज करिए। आप मत सोचिए आपने क्या लगा रहा है। सपोज मैं आपको एक हाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक एसआईपी स्टार्ट जी करिए। एसआईपी हाँ ऐसा स्टार्ट करिए, एसआईपी आप समझ रहे हो, जी सिस्टमेटिक हाँ समझ इन्वेस्टमेंट रहा हूँ प्लान।
मतलब I have an SIP. ओके, वेरी गुड। तो सीमलेसली आपका बैंक अकाउंट से हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा चला जाएगा। आप जो फंड में चूज करेंगे उस फंड में चला जाएगा। अगर आप चला डायरेक्ट नहीं जाएगा। करना चाहते हैं, वो आप एक अच्छा फंड जी हाउस चूज करिए, चला जाएगा। अब देखिए मत, देखिए मत, जाने दो। एक साल का बाद आप रिव्यू करिए। अगर ऐसा कुछ ही होता है तो फिर कोई एडवाइजर के पास जाइए, आप फंड चेंज करिए। लेट जी इट कंटिन्यू, जी। लेट इट कंटिन्यू। और ऐसा फंड चूज करिए आपका मिस करिए, मतलब आप पोर्टफोलियो बना के चलना चाहिए। पोर्टफोलियो में जो भी पोर्टफोलियो एनालिसिस में करता हूँ, जी वो भी इस किताब जी में दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है। मतलब जी। आप जो चीज़ आप बोलोगे सब सब चीज़ मिलेगा, आपको समझना है। ठीक है, जी तो आप पोर्टफोलियो बनाइए, चलिए। जी एस आई पी के थ्रू चलिए। मान लो कि आप 12% का एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को 12% मिल जाए कम से कम। आप 10,000 रुपया ओके। कर रहे हैं पर मंथ, 15 साल कर रहे हो, दैट मीन्स 180 मंथ आप कर रहे हो। डू यू नो हाउ मच जी मनी यू विल अर्न ऑन एवरेज? सपोज अगर 12% आता है, यू विल इमेजिन it will come to 54 lakhs, 54 lakhs, only ओ माय 10,000 गॉड। per month। 10,000 पर मंथ। month। यस। इंशाल्लाह अगर ये ठीक ठाक चला, हाँ, जी। तो आपका 12 की आप एक्सपेक्ट करें 14% भी आ जाएगा। देन तो योर 14% भी आ रिटर्न जाए। या। तो मैं वही, वाह। जो मेरा साथ आते हैं मैं वही इनको जी ये बोलता हूँ, आप एक गोल बनाइए, फाइनेंशियल गोल। आप यस कितना साल में कितना अमाउंट इकट्ठा करना चाहते हैं, फॉर व्हाट पर्पज? जी। पर्पज शुड बी, मैं घर पर्पस होना लेना चाहिए। चाहता हूँ, मैं गाड़ी परचेज करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं बच्चों का शादी करना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, जी। मैं अपना घर बनाता हूँ, मैं हनीमून करना चाहता हूँ, व्हाट एवर योर पर्पज, यू डिसाइड। जी डिसाइड करने के यस। बाद आप क्या करिए, एक अमाउंट को फोरकास्ट करिए। से आपने 20 लाख फोरकास्ट किया, मैं 1 करोड़ फोरकास्ट किया, अकॉर्डिंगली एक एक रिटर्न आप माइंड में रखिए। फिर एक एस आई पी स्टार्ट करिए। जब ओके। आपका अमाउंट पहुंच जाता है, सपोज आपने 20 लाख का एक एस आई पी स्टार्ट किया और मात्र 3,000 रुपये की आपने इन्वेस्ट किया, चलते गया ओके सर। चलते गया। आपने 18 साल के 20 साल का अवधि में 3-3 हजार करके 20 लाख का के रखा है। लेकिन ये अपना 15 साल में 20 लाख आ गया। आप प्रॉफिट बुक करिए, फॉरगेट अबाउट मार्केट। आप बुक करके पहले 20 लाख अपना रिच एसेट से डेप्थ होने चले जाइए, विड्रॉ। बैंक रख दिए। जी आपका ऐसे भी चले दो, डोंट स्टॉप दिस आई पी, जी। ओके क्योंकि ओके। आपका गोल फुलफिल हो गया है। ये सब हाँ। जानना जरूरी है। बोलते बोलते मैंने आपको बोल जी। दिया हाउ टू बुक प्रॉफिट। ये भी बुक किताब में बुक लिखा है, प्रॉफिट। मतलब कब आपको सेल करना है, क्यों करना है, हाँ। क्या करना विद है। विद द एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड जी यू। ये मैं जी आपको 3 का किताब का नोट्स बता दिया। जो जी चौथा सर। किताब है मेरा, ये हिंदी में, ये आपको जी। प्रभात प्रकाशन ने कन्वर्ट किया। हाँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम जी। उड़ीसा, मेरे को हिंदी का यस। इतना नॉलेज नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ओके। बोल सकता हूँ, जी। मैं हाँ। पढ़ सकता हूँ, जी। लेकिन मैं कुछ लिख नहीं सकता। ये मेरा ड्रॉबैक नो है, डाउट। नो डाउट। जी तो उन्होंने इसको कन्वर्ट कराया, दिस इज माई फर्स्ट बुक। क्योंकि डिमांड जी था लोगों का कि सर इंग्लिश में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई हिंदी का बुक हो जाए। जी तो ये जी। इसलिए ये फर्स्ट बुक उन्होंने मैंने कन्वर्ट कराया, करा कि और मैंने सर आपने उसका टाइटल भी बहुत अच्छा चुना है। सही निवेश से सही अमीर बने, निवेश। अमीर बने। मीर बने। क्योंकि आप जी। निवेश सही करेंगे मतलब तो बहुत अमीर। अट्रैक्ट कर रहा है पब्लिक को। यस। तो ये था जी मेरा किताब का जर्नी, जो मैंने आपको बता जी दिया। 2013 में मैंने फर्स्ट क्लास इस किताब रिलीज किया था, जी 2016 में जी मेरा सेकंड था, और जी 2019 में मेरा, 19 ना 20 में होगा शायद, लिखा लिखा ओके। था 19 में। जस्ट जी कोविड जी। से जनवरी 20 में पब्लिश किया मैंने, कोविड तो मार्च में आ गया था। अच्छा। ठीक है, जी जी वो 6 महीने जो है जी। किताब बिचा नहीं है, ड्यू टू कोविड इफेक्ट। हाँ। मेरा भी थप्पा पड़ गया था बिजनेस। कोविड। जी अभी जी। खूब काम चल रहा है। अब इसके अलावा मेरा 2 प्रोजेक्ट हाथ में है। मैंने एक जी। प्रोजेक्ट जो किया है, वन नेशन वन पेंशन। अच्छा। मैं वन इसका लेसन। वन नेशन वन पेंशन। ओके।
भारत एक देश है, हमको एक हाँ पेंशन का योजना चाहिए। हमारा देश में आजकल हाँ पेंशन का वैरायटी ऑफ चीजें जो में रिटायरमेंट प्लानिंग लिखा है, तो यू जी डोंट जी बिलीव। हम लोग तो प्लानिंग करते नहीं, हम सोचते हैं कि जनरली इंडियन इंडियन मेंटेलिटी है, जी हमारा जी बच्चे हम देखेंगे। जी लेकिन आज के डेट में आप देखे जी होंगे, बिल्कुल। फॉरेन कल्चर आ गया है। पीपुल आर होमलेस, घर से बच्चे निकाल यस देते हैं, कोई देश छोड़ के जी। बाहर चले जाते हैं। ओल्ड तो एज होम्स में। ओल्ड एज होम का जो कल्चर चालू हो गया है, तो इसके जी बचने के जी लिए तो गवर्नमेंट जी का पास में कोई एक तरीका नहीं है सबको एक हाँ पेंशन मिले। तो मेरा जी। दिमाग में चल रहा है कि ये फुल प्रूफ एक किताब बना जाए, ये बात, बता कि प्राइम ये मिनिस्टर को प्रॉब्लम भी आप इसको, सॉल्व कर रहे प्राइम मिनिस्टर को इसको हम सौंप दें। लेट गवर्नमेंट हैं। डू, जी बिकॉज आई कैन नॉट डू, आई कैन गिव द आइडिया, आई कैन गिव द कैलकुलेशन यस एवरीथिंग्स। यस मेरा दिमाग में जो है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जो किताब आएगा आप देख जी लेना। आई डोंट नो वेदर आएगा कि नहीं जी आएगा, लेकिन आएगा। तो मेरा बिल्कुल आएगा ये सर। आएगा। मेरा मेरा ये मन में ये चाह, जब हम कोई पैदा होता है इंडिया में, उसको हम डेट ऑफ बर्थ का एक सर्टिफिकेट देते हैं। वो जी सर्टिफिकेट का साथ साथ इसका साथ उसका एक आधार पेंशन स्कीम वही चालू हो जाए। जो जी स्कीम वो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, एजुकेशन करेगा, नौकरी करेगा, वही नंबर उसका लागू हो जाएगा। जब तक वो पढ़ाई करता है, 20 साल 25 तक उसका नहीं होता है, उनका फादर मदर जो बर्थडे में सेलिब्रेट करते हैं, जो पैसा आता है वो खाता में डाले। जी ओके। इसके अलावा अगर जी कहीं सर। देना चाहता है वो डाल दे। जो गरीब बच्चा है उसको नहीं मिल रहा है, जो स्कूल में जाता है, चैरिटी में, सीएसआर फंड में जो आता है, डाले। मेरा डन। जो प्रपोजल है, 1 रुपया डाले तुम्हारा, हर साल 1 रुपया डाले, आपका जो पेंशन स्कीम है वो लाइव है, वो मरेगा नहीं। ओनली 1 रुपी कंटिन्यू करते जाए। जो जब बच्चा 20 साल 25 साल में कोई भी धंधा करेगा, रिक्शा टाने, जी खेते में काम करे, गाड़ी चलाए, और क्लर्कगिरी करे, अफसरगिरी करे, टीचिंग करे, वकालत करे, डॉक्टर करे, वो जो अर्निंग करेगा, जो गवर्नमेंट देना चाहता है उसी में डाले, यू भी अपना डाले। जी कोई किसी को कोई पेंशन का जरूरत तो नहीं पड़ेगा, किसी को हाथ झुलाने नहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। यू यू विल नॉट इमेजिन, अगर आप ये लागू कर देते हैं, आपको जी रिटायरमेंट 60 साल के लिए इंतजार नहीं करेगा। 40 ईयर्स में इतना कॉर्पस हो जाएगा, यू कैन एंजॉय योर लाइफ वट एवर लाइफ। ये मेरा दिमाग में घूम रहा है, वो मैं इसको बैक एंड बैकअप में प्लान बना के गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ। बिफोर 1 ईयर आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि वन मैन वन पेंशन प्लान, ये मैं कर जी रहा हूँ, आप इसमें करिए। थोड़ी सी एक 2 लाइन का चिट्ठी मैंने ऑलरेडी दिया हुआ। नो डाउट प्राइम मिनिस्टर हैज रीड दैट मैसेज, बट हाँ दे हैव नॉट रेस्पॉन्स। जी है। ये मेरा जी मतलब ये मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है साइड बाय साइड। और जी दूसरा प्रोजेक्ट जो है, ये आपका रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप इज नॉट बिटवीन a lover and a belover, and a husband and wife. This is a relationship. This is a जी relationship between you and me, public and government, state and जी state, जी country and country. And apart from that, what I have told you, lover, believer, जो भी आप लगा दो, हर जगह में ये जी रिलेशन काम करेगा। वो एक मेरा जी बुक है, विभाग, एंड इट मे बी पब्लिश विद इन 1 or 2 months। जी दिस इज माई वाह सर। दिस इज माई ऑथर जर्नी। Apart from that, you have any curiosity, you can ask me. I'll tell जी मतलब सर आपने पब्लिक के फ्यूचर्स भी सॉर्टेड कर दिए हैं, सारे उनके जो डाउट्स हो सकते हैं आपने अपने विजन से अपनी बुक्स में अपने पूरे विचार उतार दिए हैं सर। माइंड नहीं, ब्लोइंग मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि रिटायरमेंट का बाद, आई एम गोइंग टू रिटायर इन द कमिंग जनवरी। ओके। सर। ओके हाँ, तो मेरा तो प्रोफेशन ऑलरेडी है ही है, ये जो करना है, तो कुछ करेंगे, चैरिटी में कुछ काम करेंगे लोगों के लिए। जी देखें, सर। आफ्टर ऑल जो रिलेशनशिप में बुक में लिख रहा हूँ, जी फॉलिंग इन लव, लिव विथ लव,
और लिविंग विथ लव, लिव विथ लव एंड लिविंग विथ लव। जी आप ओके। ओके, तो ये जो जी दो चीज है, इसको आप कब कर पाओगे? इफ यू हैव ए पीस ऑफ माइंड एंड यस फाइनेंशियल देयर इज नो बर्डन। यस ओके, पीस ऑफ माइंड कब होगा? आपका विचारधारा, आपका थिंकिंग अगर सही दिशा में जाए, पॉजिटिव माइंडसेट जी में आप काम करें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, लगाए इधर उधर भटकने मत, तो आप कर पाओगे। अगर जी सर। थोड़ी बहुत पैसा फाइनेंशियली आप मेरा किताब पढ़ोगे, आप फाइनेंशियली अपने प्लानिंग कर देंगे, आपको इंशाल्लाह, गॉड द बेस्ट एवरीबॉडी, अगर ये लोग सारी आपका पैसा ठीक उनका हिसाब में मिल जाए, फाइनेंशियल जी सर। प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाएगा। तो जी आप चैरिटी करिए, बोलिए, आप ज्ञान वितरण करिए, जी रहिए शांति से, नो बडी विल डिस्टर्ब यू। दिस इज माई मोटो। जी वाह सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो आई हैव सम क्वेरीज, मैंने क्वेश्चंस लिए हैं लोगों से जिनसे मैं इंटरेक्ट कर हाँ सकता हाँ, था। बोलिए बोलिए। सो जी सर, जो आजकल लोग रहते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर बोलते हैं, म्यूचुअल फंड एजेंट बोलते हैं अपने आप को। सो टू बी अ म्यूचुअल फंड मैनेजर और अ एजेंट, इज देयर सम डिग्री और डिप्लोमा विच दे नीड? एक्चुअली क्या होता है, जो फंड हाउस होता है वो एक जी एग्जाम कराता है, ठीक है? ओके। एग्जाम करने के बाद इनको एजेंट बना देता है। लेकिन अच्छा। सेबी का भी प्रोविजन है, एनआईएम का जी एक है, आई एम जस्ट शोइंग जस्ट ओके सर। लाइक दैट, एनएसआईएम, एनआईएसएम। एनएसआई, एनआईएसएम, इनका थ्रू एक एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है म्यूचुअल फंड ओके एजेंट के लिए, वहां पे आप ले सकते ओके हैं। सर। अच्छा जब आप इनको इनका थ्रू लेंगे देन यू आर ए रजिस्टर्ड एजेंट। जब आप ओके म्यूचुअल फंड सर। फंड हाउस को थ्रू लेंगे, फंड हाउस इज रजिस्टर्ड बट यू आर नॉट रजिस्टर्ड, यू आर वर्किंग फॉर नॉट द फंड हाउस। रजिस्टर्ड। ओके सर। इसके आप ओके। वहाँ जाइए, साइट में जाइए, आप पढ़िए, ज़्यादा नहीं होता है मेरे ख्याल से, 90 क्वेश्चन होता है, कोई 100 क्वेश्चन होता है, 1-2 घंटे का टेस्ट होता है। जी 1500 रुपया, 1200 रुपया, दैट डिपेंड अपॉन द लॉट ऑफ पीपुल्स देयर्स, वहाँ जाके आप जी ले सकते हो। जी ओके सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का, सर कोई भी स्टॉक अगले दिन किसी भी दिशा में जाएगा हमें कैसे पता चलेगा? यदि हम नहीं जान सकते तो ये सब मतलब दिस इज गैम्बलिंग। दोबारा बोलिए, आई कैन फॉलो यू। सर कोई भी स्टॉक अगले दिन में कौन सी दिशा पकड़ेगा, या वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हम पता कर सकते हैं या नहीं पता कर सकते हैं? ओके, देखो, स्टॉक मार्केट इज ए वेरी अनप्रेडिक्टेबल मार्केट, nobody knows जी what will happen today। जी उसमें स्टॉक मार्केट में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं? आप, मैं, इसको बोलते हैं रिटेल निवेश, और जी कुछ इंस्टीट्यूशन करते हैं, जो हमारा म्यूचुअल फंड, जितना भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, वो सारी वहाँ निवेश करते हैं। जी इसके अलावा कुछ फॉरेन इन्वेस्टर, हम एफआई बोलते हैं इसको, फॉरेन जी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर, वो तीनों करते हैं। जी मान लो जी उनका बीच में कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल्स जो ब्रोकरेज करते हैं, ये लोग क्या जी करते हैं, कार्टेल बना देते हैं। मैंने ओके एक कार्टेल बना लेते हैं। मैं एक ग्रुप खोल दिया, जी भाई स्टेट बैंक को जी सेल करना है,